year will bring in that each one will bring new 50 subscribers for the magazine every year. Now on this, so far only the national pensioners, National Pensioners Railway Welfare Association Nagpur, only they have recruited 32 new members. I request others also to kindly follow this, and because this is the permanent solution, that we increase the members for the magazine, and we increase the number of affiliated associations. As on today, we have got 222 associations affiliated to us. So, any suggestion, any further suggestions? Mr. Lanjewal? रिकॉर्ड हो रही है ना सारी. Yes, please. Any suggestions? I have to add something to it, that let us take a decision that who form your own association, at least you should ensure that all the managing committee members at least are subscribers to the Bharat Pensioner magazine. Do you agree to it? Hello? Hello? Are you able to hear me? Sir, they can hear, but they have to unmute their mic and speak. Oh. They have to please unmute your mic and speak, sir. Kindly unmute. They have to unmute at their from their end only, no? Yes. Or you can raise Yes, their sir. Ah, Sir. Now, Yes. my suggestion is that yeah. every member must enroll their body members, that committee members, Mhm. at least. This is my suggestion, sir. Oh, Hello. anybody else has to say something? Kindly unmute your mic and speak. Yes, Mr. Kanjilal. Yeah, your suggestion about the optional approach, what I supplement, if we request all the, as we are affiliate organization, so our status is a bit different from individual members of the BPS. Now, what we feel from our organization, if organization as per their condition, let them pay an annual money amount organizationally, हाथ लग जा रहा है. organizationally अब to लेके नहीं है. donate, परीक्षित दवा BPS in every year, an amount. ये हटा दिया. So It is my suggestion that you suggest the kindly suggest the amount also. हेलो actually 1,000 मैश्री जी मेरी आवाज जा रही है 1,000 is for CEC members and office bearers. Yes. Similarly, let all the organization also pay 1,000 per year. 1,000 per year is the affiliation fee. No, affiliation fee is behind affiliation fee a donation. आपका हाथ नहीं लगेगा. Donation of 1,000, nothing will happen. At least 10,000 per year should come Per from year. every association. It depends on the Yours is a big association, Mr. Kanjilal, with 27,000 members. We are big organization, but after the corona, the condition is deteriorated a lot. The Yes, sir. increase of membership has stagnant. Now we are in the process of door to door to increase our, until and unless these देखो फिर तो नहीं अनम्यूट हो गया until and this is the only income our. So यहाँ पे आपकी हथेली लग जा रही है तो ये तो म्यूट लिखा हुआ है तो जब दबा देंगे तो बंद will होगा. be अभी चल another रहा है. board,
So I think for us, let me tell, when you are telling 10,000, let it reduce to 5,000. I am ensuring you about 5,000 every. See, my suggestion is Yeah. that मैश्री जी मेरी आवाज जा रही है कि अनम्यूट है? आ रही है आपकी आवाज खरे जी? ठीक है ओके 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 गुड हाँ, मॉर्निंग। तो मेरी सजेशन ये है कि हर मैनेजिंग कमेटी मेंबर कम से कम 50 नए सब्सक्राइबर्स एनरोल करे साल में। That I noted it, but as we are for our affiliated organization, directly we can approach for membership of us. But here, other organization is there, we can request them to be the member of BPS. That Yes. attempt we will attend, of course. We Yes, will, yes. we will I am take it- requesting. take I am it and- requesting all. I am requesting all. As per the decision of the last managing committee meeting, kindly enroll 50 new members for the magazine in a year. Let each one of us strive for it. Nagpur has done it. They have already done 34 new members they have brought in. I think others also can. We have got big, large associations with us. Yeah, we Mr. will try, we will, no doubt. We accept it, we will try it. Mr. Charayu is there from Secunderabad. It's a You must. are there from Guwahati. You have got 27,000 members. No, Wow. it is, now it is come to the 20,000. Okay, say out of 20,000, 50 new members for the BPS magazine is not a difficult job. Magazine, for magazine. For magazine. For magazine, you tell me. That is that we will. Yes, for Yes, yes. magazine. Magazine, okay. Now from Secunderabad also, I expect the same, at least, if not more. Mr. Charayalu, Comrade Charayalu, are you able to hear me? Kindly unmute your mic. Sir, good morning, Mahesh. Haji, good morning, Rayalu ji. We are today welcoming back Mr. Rayalu. Haji. Kindly unmute your mic and speak. Hello. Yeah. Sir, Railu. Yes, boliye, Rayalu ji, welcome. Sir, regarding monthly contribution, already I told you, sir, it should not be compulsory, it should be voluntary. As far as I am concerned, every year I am contributing at least from 20 to Yes, we 30% know. to Bharat Census Samaj. We are. So, at Lucknow, going to donate at least 25 rupees to Bharat Census Samaj. See, थैंक यू रायलू साहब। from PAR, password entry. Charayalu ji, kindly unmute your mic. Yes, please unmute your mic. Unmuted, sir. हेलो Yes. हेलो हाँ जी, बोलिए। मेरे वो वीडियो नहीं आ रहा, कैसे ऑन करूं? मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा भैया। आपका भी नहीं आ रहा? अच्छा ठीक। इस पे लिखा हुआ योर वीडियो स्टॉप्ड। हाँ, चलिए कंटिन्यू करिए प्लीज। yes, please. Any suggestions? You have already told that it is optional for the members to send No, it is not accepted by all. yes. Then what is decided? You have to decide. What to decide? Is it Ah, compulsory or optional? I am asking the reaction from PAR, Mr. Charayalu ji. Kindly unmute your mic and speak. Yes, unmuted, sir. Yes, unmuted. Huh?
He has unmuted. Railu has unmuted. He's speaking. But he is not speaking, no. Hello? Ah, yes. Hello? Haji, yes, बोलिए. We are hearing you. रायलू जी आप अनम्यूट कर अपना माइक म्यूट करिए. रायलू जी म्यूट करिए अपना माइक. I have unmuted. Sir, you आप speak, sir. You म्यूट करिए. are- रायलू जी म्यूट करिए. आपका हो गया. He has already unmuted, sir. He has to speak only. हेलो. Hello? Hello? हाँ जी बोलिए. Sir, instead of monthly contribution of Yeah, 1,000 rupees, I have heard you, Railu ji. Kindly mute your mic. I want to hear others. हाँ. Nanjawar ji. Yes, sir. Hello. Mr. Nanjawar ji, Yes, sir. kindly give your suggestion. Sir, my suggestion is very simple, sir. Hmm. If we want to run our organization smoothly, financial position is very essential. And this optional bill is not good, as per my opinion is concerned. If we are contributing 1,000 and that is also voluntarily or compulsory, that is a different story. But everyone is in a position to contribute at least 1,000 rupees towards Bharat Pension Samaj. And that is to be continued at least for 1 year. Further, every member is duty bound to enroll at least 50 persons, and that is from their own organization, whatever their committees are there. At least 15, 20 members are there in their committee in every organization. So it's a compulsory to them to at least contribute 400 rupees yearly. So that is very easy and feasible and practically possible. But I'm observing that we are discussing a lot and nothing is being implemented since last 4 months are there, and nobody has implemented that. So what is the need of these resolutions? At least everybody to contribute in their letter and spirit. This is my opinion. If we want to continue this organization financially very sound, Naishwari ji doing a lot of things regarding it, the commission and all these things. But I am observing, sir, very sorry to say, everybody is listening, but they are not contributing as per their commitment. This is my submission. It is very sad, I think. And at least we must take note of this. And 1,000 rupees per month is not very huge amount to each member at the present scenario. 1,000 rupees is bigger amount. And membership is also very simple, 400 rupees. So my suggestion is that, sir, this is to be implemented in a letter and spirit. Otherwise, it will be very difficult. I am watching this loss of 2,30,000 rupees. This is a projected amount. They see that So loss that is is my wiped suggestion. out now. What? During the last 3 months, we have received 81,000 from our managing committee members, and another 1 lakh donations we have received from affiliated associations, and even 50,000 Mr. Kapoor. We are very thankful to him in spite of his health and his illness, chronic illness. He is able to recruit new members also, sitting at home, and he has been able to get us donations also worth 53,000. So if there is a will, there is a way. So I request all those who are with us as in the managing committee to, if they do not want it to be compulsory,
to contribute 1,000 rupees per month, then I suggest that they should at least donate 10 to 12,000 rupees a year minimum to Bharat Pensioner Samaj. सर जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनेंगे आप? आपका नंबर आ रहा है भाई साहब, जी जी, आप ओके, रुकिए, ओके, आपका तो ओके। लंबा चलेगा। नहीं नहीं, इसके बारे में, इस टॉपिक पर मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, वो आप सारे टॉपिक से बोलिए। ठीक, हाँ, तो हाँ बोलिए खरे जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा था कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है और इसको हम लोग मार्च तक हम चाहेंगे कि सब लोग 1,000 रुपया और 2,500 रुपया जो नए मेंबर्स हैं वो देंगे, वो हम लोगों ने दिया। अब आप जब आपके अकॉर्डिंग टू यू जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भारत पेंशनर समाज की ठीक हो गई है, तो अब इसको आप चाहे तो कंपलसरी के बजाय ऑप्शनल कर दीजिए। इसको कंपलसरी क्यों कर रहे हैं किसी के? देखिए ऐसा है जी कि ये सिचुएशन हर साल आएगी और इसका जो परमानेंट सोल्यूशन यही है कि हम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स टू मैगजीन बढ़ाएं राइट और राइट, और अफिलिएट्स बढ़ाएं। उसीलिए ये हाँ। कहा गया कि जी। हर मेंबर कम से कम साल में 50 नए सब्सक्राइबर्स लाएंगे जी। मैगजीन के लिए। जी, और इसके लिए मैं agree। कोशिश करेंगे कि और एसोसिएशंस को भी लाएं साथ में राइट एज राइट, एफिलिएट्स। मैं आई तो- एग्री। हाँ, सो यही है। दूसरा रह गया 1,000 का। जी। जो लोग वो चाहते हैं, जो लोग फील करते हैं कि 1,000 पर मंथ जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स के लिए जी मुश्किल है, जी। तो दूसरा सजेशन ये है कि भाई वो कम से कम डोनेशंस तो लाएं। साल में right। कम से कम 10-12 हज़ार का डोनेशन ही ले आए जी मिनिमम। इतना तो करें, कुछ तो करेंगे भाई फॉर नहीं, प्रमोशन donation ऑफ क्या? भारत। जब आप मैनेजिंग कमेटी में हैं तो भारत पेंशनर समाज के प्रमोशन के लिए कुछ तो करना करेंगे। चाहिए, करना चाहिए, राइट हाँ, राइट। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ठीक है, इसको 1,000 पर मंथ को ऑप्शनल रहने दीजिए, लेकिन साथ में यह है कि हर मैनेजिंग कमेटी मेंबर को सफिशिएंटली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू प्रमोट भारत पेंशनर समाज। तो उसके लिए कम से कम हर मैनेजिंग कमेटी मेंबर ये तो एफर्ट्स करे कि वो साल में 12,000 का डोनेशन हमारे लिए लाके दे दे, कम से कम 10 या 12,000 का। और ये भी जो हमारे साथ बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं जिसके 20,000, 25,000, 27,000, 80,000 मेंबर तक के एसोसिएशन हमारे साथ हैं। नहीं, मेरा तो मतलब अगर वो 1 रुपया मेंबर भी हमें देंगे तो बहुत हो जाएगा। हाँ, तो जो बड़ी बड़ी है वो कर सकती है। हाँ, तो ये कोशिश तो करनी पड़ेगी ना हाँ, कोशिश सबको करनी भाई। चाहिए। जब आप मैनेजिंग कमेटी में मेंबर हैं तो आप कुछ जी। तो करेंगे भारत जी पेंशन जी समाज जी, के लिए। कोशिश नहीं करनी तो चाहिए कि खाली हम क्या अपनी मैगजीन। टैग थोड़ा है कि आप टैग लगा के रखेंगे खाली। तो महेश सर, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से राइट राइट राइट, कोशिश तो करेंगे ना। जी हाँ बिल्कुल, आई एग्री। हेलो महेश सर जी। हाँ जी, हाँ रायलो। हाँ जी बोले रायलू जी, हो गया ना? Instead of monthly contribution. अरे of 1,000 हो गया rupees- दादा, हो गया ना ऑप्शनल। No. Kindly hear me. See, हाँ। instead of monthly contribution, every year, every member will contribute a minimum amount of 10,000 rupees as donation. That is what I am telling. Agree. Those That- who do not want to contribute monthly, they should bring donations at least 10 to 12,000 rupees a year. Agreed, sir. Agreed. Yeah, that is all. Okay. Agreed, sir. Agreed. So can I move to the next item now? Now, next item is our 68th AGM. Now, the proposal was to hold it at Lucknow, and Mr. D.C. Khare, his association had offered to host it. Now, I invite Khare ji to give us update. Is he ready? Hello, Mr. Khare. यस सर,
हाँ Now बताइए tell सर। me what is the position? Have you booked the venue? सर जी हम लोगों ने रेन्यू तय किया था पहले रविंद्रालय लखनऊ स्टेशन के ठीक सामने, जिसमें दिक्कत। हेलो 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 हेलो। हाँ जी खरे जी बोलिए। हाँ हम लोगों ने पहले यहाँ पर बात किया था रविंद्रालय के लिए, जो चारबाग स्टेशन के बिल्कुल पास में है, सामने है। अरे भाई बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हरचंदन जी अपना माइक Right, sir. Good morning. Good morning, sir. मॉर्निंग Michael. माइक वेरी म्यूट वेरी करिए। गुड मॉर्निंग भाई साहब। काइंडली लिसन टू मिस्टर खरे। हाँ जी हेलो। खरे जी। हाँ सर जी, जैसा कि आपने कहा था, हमने यहाँ पर वेन्यू तय किया था पहले रविंद्रालय, लेकिन रविंद्रालय में दिक्कत ये हो रही थी, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये लोग आप कह रहे। शॉर्ट में बताइए अभी क्या पोजीशन है, अभी आपने कौन सा किया? मेरी बात सुनिए, मैं शॉर्ट में बता दूंगा, बहुत शॉर्ट कर दूंगा। मैं रविंद्रालय में दिक्कत ये थी कि पूरा पैसा मांग रहे थे और आपने कहा था अभी नहीं दिया जा सकता है, तो मैंने कामरेड शिवगोपाल जी से मिल करके यहाँ पर एक आलमबाग में स्टेशन से 2.5 किलोमीटर पर एक कम्युनिटी सेंटर है 40 क्वार्टर्स का, नॉर्दर्न रेलवे का, उसको हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। उन्होंने उसको ब्लॉक करा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 3 महीना पहले अलॉटमेंट होता है, आपको अलॉट कर देंगे। आपसे भी उनकी बात हो गई है। तो 40 क्वार्टर में बहुत सफिशिएंट जगह है, उसमें 600-700 लोग बैठ सकते हैं। हॉल बहुत बड़ा है, वो हम लोगों ने इंतजाम किया है, उसमें हमारे खर्चे भी कम लगेंगे। वही हम लोगों ने फिलहाल डिसाइड किया है। देखिए खरे जी, मैं एक मोटी सी बात जानना चाहता हूँ जी। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आप मैनेज कर पाएंगे? अगर आपको जरा सा भी संशय है, जरा सा भी कोई डाउट है, तो आप अभी बता दीजिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सर हम तो, हाँ बताइए, आप बोल लीजिए तब मैं बोलूँ। हाँ मैं बोल चुका। अगर आप 100% तैयार हैं, आप फाइनेंसिस हैंडल कर पाएंगे तो हाँ बोलिए, और अगर जरा सा भी संशय है तो आप अभी बता दीजिए। फाइनेंशियल पोजीशन से आपका मतलब क्या है सर? जब मैंने कहा है कि मैं करूंगा और आपने कहा हमको करने के लिए और मैं तैयार हूं, तो आप बार बार मुझसे फाइनेंशियल पोजीशन को पूछते। ठीक है देखिए, आप नहीं, आज के बाद नहीं पूछेंगे। नहीं, आप हमारी बात तो सुन लीजिए सर, आप हमको बोलने नहीं देते हैं कभी, आप अभी बोलते हैं। भैया जी हम वर्चुअल मीटिंग में हैं, ज्यादा टाइम नहीं होता। नहीं ज्यादा टाइम नहीं, तो आप 10 मिनट तो हमको देंगे। इतनी बड़ी टॉपिक पर मुझसे बात करेंगे, 5 मिनट तो देंगे। चलिए 5 मिनट में बोलिए आप। हाँ, तो हम लोगों को जब आपने दिया है करने के लिए, और बहुत बार आपने कहा, मैंने कहा मैं तैयार हूं करने के लिए। देखिए, हम आपको लोगों के लिए वेन्यू इंतजाम कर रहे हैं। आप स्टेशन से आ जाएंगे, हमारी गाड़ियां लगी रहेंगी, जहां से आपको हम पिकअप कर लेंगे मवैया से। और दूसरी बात है, आप लोगों के लिए 2 टाइम का सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना हम देंगे, शाम को टी देंगे जो आपने बताया है। और रखने के लिए होटल का इंतजाम मैंने लिस्ट ले लिया है, रिटायरिंग रूम की लिस्ट ले लिया है, आपको यहाँ दे देंगे टाइम से। आज कहिए, अभी दे दें आपको। और हमसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये बता दीजिए आप। हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फंक्शन जो है भली बाती मैनेज हो जाना चाहिए। तो मैंने कंसेंट नहीं होता, ये तो कंसेंट तो आप मुझे अपने ऑफिस से बुला के मेरा इंटरव्यू ले चुके और कई बार दे चुका हूँ। अब आपको क्या कंसेंट चाहिए? मेरे को जानकारी नहीं चाहिए। आज जो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग है, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में आपका कंफर्मेशन मैनेजिंग कमेटी को चाहिए। वो आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। हाँ कि तो आज ये कंफर्म होता है कि हमारी 68 AGM लखनऊ में होगी और खरे जी की संस्था उसको होस्ट कर रही है। और ये वेन्यू इन्होंने बता दिया है, जो उसका एड्रेस भी हम अब सबके सर्कुलेट भी कर रहे हैं और मैगजीन में भी हम इसका पब्लिकेशन शुरू करेंगे। लिस्ट ऑफ जो आ जाएगी होटल्स की और रिटायरिंग वगैरह की, वो भी हम सर्कुलेट कर देंगे सबको। और डेलीगेशन फी जो पहले की तरह वही 500 रुपीज रहेगी। और उसमें स्पाउस फ्री पिछले
जगह रही है पिछले ओकेजन्स पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि खरे जी भी इससे ही एग्री करेंगे। हाँ हम हेलो। ठीक है, मैं आई एग्री, हाँ खरे। मैं एग्री। तो डेलीगेशन फी 500 रुपीज पर पर्सन पर डेलीगेट विद स्पाउस फ्री। स्पाउस से कोई डेलीगेशन फी नहीं लेंगे। Right. और डेलीगेट्स के लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, देन लंच ऑन 19th/11 मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच और आफ्टरनून टी, ठीक ये रहेगी। जी। जो 12 तारीख को ये 19 तारीख का 19 तारीख फाइनल है। 19 नवंबर 2023 मैनेजिंग कमेटी मीटिंग एज यूजुअल 18 नवंबर को रहेगी। मैनेजिंग कमेटी के लिए जो भी व्यवस्था होगी उसका जो भी खर्चा आएगा वो बीपीएस बियर करेगी। प्रिंटिंग मटेरियल का जो भी खर्चा आएगा उसका अरेंजमेंट भी बीपीएस प्रोवाइड करवाएगी इनको। और जो हमारे गेस्ट हैं उनका जो रेजिडेंशियल एक्सपेंडिचर है, उनका खाने का है एक्सपेंडिचर, वो भी बीपीएस प्रोवाइड करेगी। तो ये फाइनल है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपका जो 18 तारीख को मीटिंग होगी वो भी हम कराएंगे, और उसमें आपका जो डिनर होगा वो भी हम देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, दूसरी बात, तो जो हम हर साल 2 ट्रॉफीज रखते थे, मेमोरियल ट्रॉफी 2 रहती थी, वो कोरोना की वजह से डिसकंटिन्यू हो गई। अभी इस बार हम फिर चालू करेंगे 2 मेमोरियल ट्रॉफीज विद 5000 कैश। एक एसपी वट्टा मेमोरियल ट्रॉफी और दूसरी दया महेश्वरी मेमोरियल ट्रॉफी विद 5000 कैश। 2 एसोसिएशंस को हम अवार्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। उसके लिए जो परफॉर्मा है वो पिछले सब सालों की तरह से हम सर्कुलेट करेंगे, और जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो उस परफॉर्मा के ऊपर वो अप्लाई करेंगे। दूसरा जो है, हर साल हमारे मेंबर रहते हुए साल में जो लोग 80 साल के हो जाते थे उनको हम प्लेटिनम ब्रदरहुड के मेंबर बना के उनको ऑनर करते थे। कोरोना की वजह से ही बीच में ये डिसकंटिन्यू हो गया था। इस साल से हम फिर वो चालू करेंगे कि जो भी भारत पेंशनर समाज के मेंबर्स हैं, डायरेक्ट मेंबर्स, नॉट अफिलिएट्स के मेंबर्स नहीं, हमारे जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं, और मैं वो पिछले साल में मेंबर रहते हुए 80 साल उम्र के हो गए हैं, उनको हम 68 एजीएम के समय ऑनर करेंगे। उसके लिए हम मैगजीन में डिटेल्स देंगे, और उनके जो बायोडाटा आते हैं वो भी हम मैगजीन में पब्लिश करते रहे। इस बार भी ये प्रथा फिर से हम चालू करेंगे। तो ये सब हो गया हमारी 68 एजीएम के बारे में। एक मेरी अपील है, सुन लीजिए। हाँ जी। सभी लोगों से, सभी जितने हमारे एफिलिएट्स हैं, सब लोगों से, हमारे साथियों से अपील है कि जो हमारे डेलीगेट्स आने वाले हैं, जो डेलीगेट्स आने वाले हैं उनकी फीस, हम लोगों को डेलीगेट फीस होती है वो अगर जल्दी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। लोग पहले से बुक करा देंगे। हाँ जी, उसके लिए आप एक काम करिए, आप जो अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट नंबर दे दीजिए जिसमें वो डायरेक्टली आपको डेलीगेशन फी ट्रांसफर कर सके। राइट सर। और एक और चाहते हैं कि जितने लोग आने वाले हैं, ये हम आदरणीय महेश्वरी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक एसेस कर लीजिए कि कितने लोग आएंगे, वो हम लोगों को एक आध महीना 2 महीना पहले बता दीजिए। देखिए, जो ये पिछला हमारा एक्सपीरियंस है, एग्जैक्ट फिगर तो
डेलीगेट्स की नहीं बताई जा सकती। जी, जो पिछला हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि बाहर के लोग कराते हैं 200 to 250, जी, और जो आपके लखनऊ के लोकल या आपके एसोसिएशंस आपके आसपास के लोग रहेंगे वो एडिशनल होंगे, उसका असेसमेंट आप कर दीजिए। राइट। तो हम ये समझते हैं कि 450 से 500 लोगों की व्यवस्था रखनी चाहिए। बाहर के लोग आपके 250 तक होंगे, आपका मतलब? हाँ, बाहर के लोग अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकते, हाँ, कम भी हाँ, हो सकते, कम भी हो हाँ, सकते ज्यादा हैं, राइट, राइट। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, मतलब लेकिन असेसमेंट 250 का है। अब जो पिछला हमारा एक्सपीरियंस है उसका जी, एवरेज बता रहा हूँ। नागपुर में जी, तो ज्यादा थे, जी, 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 लेकिन जो विशाखापट्टनम में भी ज्यादा थे, जी, लेकिन जो एवरेज हम निकाले हैं पिछले 5-6 साल का, जी, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जी, लेकिन कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दी जा सकती, ये राइट, एक अंदाजा है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। जी। टोटल जो लेकिन ये इसका लोकल्स अंदाज को, हम लोगों को, उसका अंदाज हम लोगों को कब तक मालूम हो जाएगा कि ज्यादा लोग आ रहे हैं? ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सारे लोग एडवांस में नहीं देते हैं। जी, बहुत सारे लोग उसी दिन आके वहां देते हैं, जैसे आपने भी नागपुर पहुंचने के बाद दिया, जी, 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 तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। जी, तो इसके लिए हम कोई आपको एक मोटा तौर पे अंदाजा दे सकते हैं, जी, एग्जैक्ट जी, फिगर कोई नहीं दी जा सकती। ठीक, ठीक। ये आप मान के चलिए कि आपको करीब 450-500 लोगों का व्यवस्था करनी है। ये बाहर का तो आप 250 कह रहे हैं, तो मैं मान लूं 300। अरे भाई, तो लखनऊ में जो आपकी 10 अब तो लखनऊ एसोसिएशन वाला है। तो हम अपना, वो तो हम हाँ एसेस करेंगे ना सर जी। हाँ, तो मेरा जो असेसमेंट ये है कि राइट, अभी राइट। तक जो रहा है कि जी, लोकल लोग जो है वो करीब 300 350 के करीब रहते हैं लोकल लोग। आप लखनऊ में आपके कितने रहेंगे हाँ, ठीक भाई? है, ठीक, ठीक, ठीक। लखनऊ तो जी, नवाबों की नगरी है और राइट, नजाकत के राइट, लिए जानी राइट, जाती है। वहाँ बहुत सारे जो है देखने लायक जगह भी है, राइट, राइट, राइट। हम आप और लोग, हाँ, हम उसकी आप आप लोगों को, एक मिनट सर, हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठहराने की व्यवस्था करेंगे, जो रेलवे के तरफ से इंतजाम होगा। रिटायरिंग रूम अगर आप लोग जल्दी रिजर्वेशन करा लेंगे समय से, तो उसका भी हम लोग अलॉटमेंट यहाँ से कराने की ये हम कोशिश करेंगे। मैगजीन में और व्हाट्सएप के ऊपर अपनी सारी एफिलिएटेड एसोसिएशंस को रिक्वायरमेंट बता देंगे, डिटेल्स बता देंगे, और फिर वो उनके ऊपर है, वो आपको जो आप अकाउंट नंबर देंगे उसमें वो डायरेक्ट भेज सकेंगे डेलीगेशन फी। जो डायरेक्ट वहां आके देंगे वो आप डेलीगेशन फी वहां कलेक्ट करा सकेंगे। राइट, राइट, ठीक है, ठीक। क्लियर? और तो कोई क्लैरिटी हमारे से नहीं चाहिए आपको? नहीं, नहीं, थैंक यू सर, आपसे तो तो बहुत दिस इज आपका। फाइनल। जी, 68 एजीएम भारत वैश्य समाज की 19/11/2023 को लखनऊ में होगी। अब नेक्स्ट आइटम, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप लोगों के सहयोग से और हमारे जो एफिलिएट्स हैं एसोसिएशंस और दूसरे हमारे जो मेहरबान लोग हैं जो नॉन मेंबर्स भी हैं, उन सबकी सहयोग से हम 31 मार्च तक जो हमारा लॉस था वो हम मीट आउट कर चुके हैं। आज की तारीख में हमें कोई लॉस नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये सिचुएशन हर साल अराइज होगी, और इसका परमानेंट सोल्यूशन वही है कि हम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स टू मैगजीन और नंबर ऑफ एफिलिएट्स बढ़ाएं। उसके लिए ऑलरेडी निवेदन किया जा चुका है कि हर मैनेजिंग कमेटी मेंबर फुल एफर्ट्स करेगा कम से कम 50 नए मेंबर्स साल में लाने के लिए, और जो मंथली डोनेशन है वो ऑप्शनल रहेगा। जो लोग देना चाहें ठीक है, वेलकम। दूसरों के लिए यह प्रावधान है, ये निवेदन है, प्रावधान नहीं, ये अपील है कि वो कम साल में
कम से कम 10 से 12 हजार का डोनेशन भारत पेंशनर समाज के लिए कलेक्ट करते थे। हर जो हमारा मेंबर है, मैनेजिंग कमेटी में जो मेंबर है, ऑफिस बेयर्स हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो भारत पेंशनर समाज के प्रमोशन के लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करें। कपूर साहब कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मेरा सर यही निवेदन है जी कि बताइए। चैरिटी बिगिंस एट होम। ऐसे कितनी एसोसिएशन है मेरी नॉलेज में जो डीए बढ़ने, रिलीफ बढ़ने पर भी लगातार चाहे 100 रुपया दे वो देते हैं। तो वी शुड इंसिस्ट ऑन इट कि हमारे मेंबर्स जो हैं एमसीएम के ऑफिस बेयरर, वी मस्ट कंट्रीब्यूट समथिंग आइदर एनुअली और क्वार्टरली और व्हाटएवर 6 मंथली जैसे भी है, लेकिन हमें एक थोड़ा सा सहारा रहे। हम इस चीज को डिसकंटिन्यू ना करें। वन ऑफ द स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर सेड सो, ओके वी मस्ट कंटिन्यू सम। आई ओनली सपोर्ट दैट। और थोड़े से हमें एफर्ट्स करने चाहिए टू एक्सप्लेन आवर इम्पोर्टेंस ऑफ द भारत पेंशन समाज और द पेंशनर्स के क्या क्या ग्रीवेंसेस हैं, सो दैट वी कैन एनरोल मोर मेंबर्स आल्सो। अनलेस अंटिल वी कन्विंस ए पर्सन, वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते। सर मेरा इतना ही। थैंक यू। Do you all agree with Mr. Kapoor? Yes. Hello. नहीं साहब, मैं Hello. एग्री नहीं करता हूँ। हम लोगों को एफर्ट, या अभी आपसे आपने डिसाइड कर दिया उस टॉपिक को कि हम लोगों को सबको एफर्ट करना चाहिए कि उसका कंट्रीब्यूशन, डोनेशन भाई मैगजीन्स को कंट्रीब्यूशन करने के लिए, मैगजीन्स की बिक्री बढ़ाने के लिए, उसके नंबर बढ़ाने के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग सबको मेहनत करनी चाहिए और जितना जिससे हो सके उसको करना। तो भाई जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं उनसे भी तो कुछ होना चाहिए ना। हेलो। हाँ जी, कमेटी मेंबर से क्या हाँ होना जी। चाहिए? हरचंदन जी बोलिए। हाँ जी, मेरा आप सबको नमस्कार। मैं थोड़ा लेट हो गया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं पहले वेलकम करता हूँ हरचंदन सिंह को कि पिछले 3 साल से गवर्नमेंट रहने के बाद आज फिर से उनके हमारा सौभाग्य है कि आज उनके दर्शन हो रहे हैं 3 साल के बाद। नहीं, उसका कारण अलग है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं चाहता हुआ। ऐसे कुछ मजबूरियां थी जिस वजह से मैं नहीं हाजिर हुआ, उसके लिए माफी चाहता हूं आपसे भी और बाकी मेंबरान से भी। मैं फिजिकली चाहे आपके साथ दिल्ली नहीं पहुंच पाया फॉर सम प्रॉब्लम्स, कि मैं अकेला ट्रैवल नहीं करता, और इसलिए अदरवाइज मैं हर तरीके से भारत पेंशन समाज के लिए जो भी सेवा हमें दी जाएगी और दी गई है आगे भी करता रहा हूं, लेकिन मीटिंग में नहीं आ पाया। उसके कारण मेरी मजबूरियां थी कि मैं अकेला ट्रैवल नहीं करता। नंबर 2 कि बेसिकली जो आपने प्रपोजल दिया, मैंने परसों आपको टेलीफोन पर भी 2-3 दिन पहले कहा था, आगे भी कहा था कि आपने एफिलिएटेड एसोसिएशंस जो हैं वो आपको डोनेशन दें, वो बिल्कुल देना चाहिए। और हम अपनी एसोसिएशन रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पूरा डोनेशन जो भी तय होगा, जो भी हमारा सहयोग हो सकेगा, हम जरूर करेंगे, अभी भी करेंगे और आगे भी करेंगे, जहां तक एज एन एसोसिएशन। और दूसरा, आपने कहा मैगजीन की सर्कुलेशन बढ़ानी चाहिए। इट इज ए वेरी गुड सजेशन और जरूर बढ़ानी चाहिए। उसमें पेंशनर्स की अवेयरनेस डेवलप होती है, वो एक अच्छा कॉज है, उसको परस्यू किया जाना चाहिए भी। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है 2 तरीके से कि जहां तक ऑफिस बेरर्स का सवाल है, ऑफिस बेरर मैं एज ए पर्सन, मुझे 1000, 2000, 10,000 देना, किसी भी जगह देना हो, वो एक इंडिविजुअल चीज है। बट एज एन ऑफिस बेरर ऑफ बीपीएस, मैं कोई डोनेशन दूं और या बंदिश के साथ दूं या वैसे दूं, नहीं, मैं उसके हक में नहीं हूं। पर्सनली बात अमाउंट की नहीं है, खर्चे की नहीं है, प्रिंसिपल की है, पॉलिसी की है। पता नहीं
किस रीजन से इसको शुरुआत किया गया, और आपने उसका तकाजा भी किया महीना भर पहले। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं एमसी को, आपको, प्रेसिडेंट को, सबको, कि इस चीज के बारे में सीरियसली, एक और भी इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, उन्होंने भी पिछले हफ्ते ये बात की मेरे साथ कि ऐसा, मैंने कहा साहब मैं इस आपसे एग्री करता हूं कि कंट्रीब्यूशन बाय द ऑफिस बेरर शुड बी एब्सोल्युटली वॉलंटरी एंड ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया श्रीमान जी, हरचंदन जी, आपके ज्वाइन करने से पहले ये डिसाइड हो चुका है। नहीं, दूसरा जो आपका सजेशन था मेन, वो था कि मेंबर एफिलिएशन फी जो है वो मेंबरशिप के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपके कितने मेंबर्स हैं? हमारे लगभग 425 से 450 मेंबर वेरिएशन रहता है, ऑल ओवर इंडिया का मिला के। लोकल 150 है, बाकी बाहर का है। टोटल जो है वो 450, 400, 450 रहता है। और उसके हिसाब से आपने जो तय किया है वो कर दिया। वो प्रपोजल मैंने परसों भेजा था, आपने अगर वो अप्रूव कर दिया है कि मेंबरशिप के, नहीं, वो देखिए, वो प्रपोजल इसलिए अप्रूव नहीं हो सकता कि जैसे आपने अपने 450 बताए, सारे लोग उसी पे आ जाएंगे। मिनिमम 1000। हाँ नहीं, मिनिमम 1000 नहीं, 1000 देने में मिनिमम होना चाहिए 1000। दैट आई एग्री फॉर 1000 रुपीज मिनिमम। उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है ना, मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ। मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़ी एसोसिएशन हैं उनको ज्यादा देना चाहिए। 1000 रुपीज हमने अभी पहले, सुनिए, अरे भाई साहब जी, हमने 1 जनवरी को ही रिवाइज किया। ये इतनी जल्दी इसको रिवाइज करना ठीक नहीं रहेगा दोबारा से। और बाकी तो वॉलंटरी है। हम कहते हैं आप 1 लाख रुपए का डोनेशन दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ है लोग जो 50-50 हजार का डोनेशन जिन्होंने दिया है। अभी 28 तारीख को 50,000 डोनेशन जो है, डोनेशन एसोसिएशंस का देना, एफिलिएटेड एसोसिएशंस का या इंडिविजुअल मेंबर्स का देना बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल मेंबर, मैं एज इंडिविजुअल मेंबर जो डोनेशन मैं दे सकता हूं देने का, लेकिन एज ऑफिस बेरर तो ऐसे लगता है कि मैं ऑफिस बेररशिप खरीद रहा हूँ। अरे वो हो गया ना, क्यों रिपीट कर रहे हो? वो हो गया वॉलंटरी। नहीं, अभी आपने दोहराया ना, इसलिए मैंने ये दोहराया कि वो हो गया ऑप्शनल। लेकिन वो मुश्किल है ना, आप दूसरे की बात सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहा हूँ साहब, सुन रहा हूँ। हाँ, तो वो अब ऑप्शनल है। 1000 रुपीज मैनेजिंग कमेटी मेंबर के लिए ऑप्शनल है, लेकिन साथ में उसके ये है कि जो साल में हर मैनेजिंग कमेटी मेंबर को कम से कम 10 से 12 हजार रुपए का डोनेशन भारत पेंशनर समाज के लिए लाना चाहिए। ये हो गया डिसाइड। अब आगे चले। आप जो मालिक है आप आगे चले, बस वो हो गया वॉलंटरी। अरे हो गया ना दादा। ठीक है सर, ठीक है। जो आपने फैसला किया, जब फैसला हो गया तो ठीक है। हाँ, मेरा निवेदन ये है कि खाली डोनेशन से काम नहीं चलता। जो हमारे मेंबर्स हैं वो भारत पेंशनर समाज के प्रमोशन के लिए भी उनको काम करना चाहिए। अच्छा, एक सिर्फ इससे जुड़ी हुई बात और भी मैंने प्रपोज की थी आपको, कि पहली बात कि भारत पेंशनर की पीरियोडिसिटी क्या अगर वो नहीं चेंज हो सकती, ऐसा है ये वो हमारे हाथ में नहीं है। वो आरएनआई से निर्धारित है। वो जो रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज, आरएनआई दोनों से वो कनेक्टेड है। बिना आरएनआई के परमिशन के हम मैगजीन की नो दैट आई आल्सो नो द प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर। नहीं, आई एग्री ऑन दैट। पिछले 68 साल से मंथली छपती आई है और मंथली ही छपेगी। ठीक है, एग्रीड। Sir, Mr. Sharma wants to talk, sir. Mr. Sharma. बोलिए शर्मा जी। Mr. Sharma. हाँ जी, बोलिए। Sir, unmute, sir. Please unmute.
Please unmute, sir. Sir, you have to unmute your mic. Mr. Sharma, you want to unmute your mic. Mr. Sharma. शायद उनका माइक म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा। No, sir, he is not doing it, I think. You can speak. Sir is not able to speak, sir. You can continue, sir. So, next item is review of working of office bearers and MC members. I have already commented on it. So far, we have got several of members who are dormant right from the time they have joined. Remove them. So now we are not in a position to carry any dead vote. Let it be very clear. Those who want to use the office bearership of BPS or managing committee membership just as a tag will not be able to welcome them in future after 68th age year. Let it be very clear. Everyone who is in the managing committee will have to discharge his duties towards BPS for its promotion and its further progress. So next item is, एक मिनट सर, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, अब एक नेक्स्ट आइटम मेरा है कि एक नए मेंबर को हम कॉप्ट करना चाहते हैं। ये स्टेट पेंशनर्स के हैं, श्री हरिमोहन शर्मा फ्रॉम मुजफ्फरनगर। जी साहब, हाँ मैंने भेजा था। हाँ, प्रपोज्ड बाय श्री हंसराज जी माही। ये बड़े अच्छे वर्कर हैं और स्टेट पेंशनर्स के लिए अभी हमारे पास फिलहाल में वैकेंसी है सेक्रेटरी स्टेट पेंशनर्स की भी। उसके लिए कोई प्रपोजल हमारे पास अभी आया नहीं है, तो उसके जगह फिलहाल हम ऑपरेट कर रहे हैं एज मैनेजिंग कमेटी मेंबर। तो आई रिक्वेस्ट यू टू कॉप श्री हरिमोहन शर्मा फ्रॉम मुजफ्फरनगर। इसके अलावा भी और मैं नाम भेजूंगा इनके लिए। हाँ जी, इसके अलावा मैं और नाम भेजूंगा जी। नहीं, और ऐसा नहीं है, हमारी कोई अनलिमिटेड वैकेंसीज हमारे पास नहीं होती माई जी। जी अच्छा जी, देयर इज अ लिमिट ऑफ नंबर। ठीक, ओके सर। हाँ जी, इनको हमने ऑप्शन के लिए प्रपोज किया है। आई होप एवरीबडी एग्रीज टू इट। एक चीज अब चौहान सर साहब, जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जी, सर जी, मुझे यह जानना था कि क्या हमारे यहाँ भारत पेंशनर समाज में बैंक से कोई नहीं है क्या? देखिए, बैंक से हमारे पास अभी जोधपुर से कोई नहीं है, और हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट्स को हम कवर करते हैं उसमें जो हमारे सेक्रेटरीज है अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग है, और उसी के हिसाब से उसी में बैंक्स भी हमारे कवर होते हैं। लेकिन बैंक वालों का कहना है कि जी, कितने मेंबर हैं बैंक के हमारे, ये तो बताइए। उनकी कितनी एसोसिएशन अफिलिएटेड है?
सर जी ऐसा है, उनकी स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है, जी किसी एक आदमी के कहने से नहीं हो सकता। हमारे साथ उनकी जैसे स्टेट एसोसिएशन हमारे साथ, स्टेट पेंशनर्स की एसोसिएशन हमारे साथ 25 से ज्यादा है एफिलिएटेड भारत पेंशनर समाज के साथ। जी उनके लिए रिप्रेजेंटेशन सेक्रेटरी स्टेट का दिया हुआ है। जी सेक्रेटरी स्टेट का जो नाम उन्होंने दिया था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, फेडरेशन ने उनकी ने, और कहा कि भाई ये अभी हम किसी को प्रपोज नहीं कर रहे हैं, समय आने पे हम किसी का नाम, कोई सुटेबल आदमी मिलेगा तो हम नाम देंगे। वो इसलिए हमने इनको फिलहाल काम चलाने के लिए हमको इन मैनेजिंग कमेटी मेंबर में लिया है श्री हरिमोहन शर्मा जी। अब बैंकर्स के हमारे पास मुश्किल से 2 एसोसिएशन है अभी तक, तो नंबर ऑफ एसोसिएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा प्रश्न ये नहीं था सर, हम हाँ। ये कहना हम जो कहना चाहते थे उसको समझ लीजिए। हम ये पूछना चाहते थे कि जो हमने यहाँ की तैयारी के सिलसिले में, एजीएम की तैयारी के सिलसिले में बहुत से यूनियन से, बैंक के लोगों से बात किया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, बहुत से लोगों के, तो इन लोगों का सबका कहना हमारी इश्यूज भारत पेंशनर समाज उठाती नहीं है, ना में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके पास है। अरे भैया जी वो इशू तो सर जी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अरे मैं समझ गया आपकी बात। नहीं आप नहीं समझे सर। आप भैया इतना टाइम, आप मेरी बात। अरे तो आप बात तो सुनेंगे। अरे सर, मीटिंग करने से फायदा। अरे आप सुनिए तो सही। अरे हमारी बात भैया तो ये सुन लीजिए आप। ऐसा है, जिसका बड़ा सा असूल है हमारा कि जिसकी लड़ाई है उसी को लड़नी पड़ेगी, आगे तो उन्हीं को आना पड़ेगा ना। अगर वो हमको, अरे तो उनकी बात सुनने वाला तो आपके यहाँ कोई हो। मिस्टर आर.के. अग्रवाल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आपको लिखा था उन्होंने, आपने उसका जवाब नहीं दिया। क्या लिखा? अब आपको लिखा है उन्होंने बीपीएस में। हमें तो कुछ नहीं लिखा, आज तक तो कुछ मिला नहीं। किसी भी बैंक एसोसिएशन का कोई इशू हमारे पास अभी तक नहीं आया है। Actually, the fact खरे जी के मेडिकल अटेंडेंस पर नोट बनाया। बैंक और LIC are differently, run. They Yes. have got खरे साहब जी 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 ऐसा है, LIC के लोग भी हमारे साथ हैं, जिनको वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हमारे जो सेक्रेटरी है फॉर अदर्स करके, वो उनका काम देखते हैं, और वो एक हमारा सेट परफॉर्मर है जिसके ऊपर उनको अपनी प्रॉब्लम भेजनी होती है। अगर वो भेजेंगे तो, अगर PSUs के अंदर बैंक आते हैं, PSUs के लिए हमारे यहाँ अलग सेक्रेटरी है मिस्टर सूर्य प्रकाश जी, PSUs का काम देखते हैं। और वो उनकी समस्या उनको जाना चाहिए कि उसके ऊपर एक सेट परफॉर्मर है, उसके ऊपर अगर उनकी समस्या आती है और उसको वो वैलिडेट करते हैं तो हमारे सेक्रेटरी उसको टेकअप करते हैं। लेकिन हर एक एसोसिएशन को हम रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। रिप्रेजेंटेशन मीन्स वो MCM में मेंबर नहीं चाहते हैं, ये हमारे चाहते हैं कि उनकी इश्यूज को उठाया जाए। जो हमारा, अरे उसी भेजो तो सही, इश्यूज भेजेंगे तभी तो उठाएंगे। भिजवाते हैं आपसे बात भिजवाते हैं। हाँ, अब पहले वो मेंबर तो बने हमारे। आप सुनिए, अरे पहले उनको एश्योर तो कीजिए। आप मेंबर ऐसे थोड़े बना दिया जाता है। क्या मेंबर बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ तो अनरोल एक पेज में होगा तो मैं भी बोलना चाहता हूँ। एक पेज में ही होगा तो ठीक है। हेलो, हाँ बताइए महेश्वरी साहब। हेलो, एक लोग बोलिए तो बात समझ में आवे। हाँ मैं राज्यवर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। खरे साहब जी, खरे साहब, पहले तो हमको मीटिंग एजेंडा में चलाना चाहिए। आप बहुत सीनियर मेंबर है। पहली बात जी, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। हमको महेश्वरी साहब का जो एजेंडा चल रहा है, हमको एजेंडा से डेविएट नहीं होना चाहिए। नहीं हमने बाई द वे रखा था। खरे साहब प्लीज आप सुनिए, खरे साहब सुनिए, आप बहुत ज्यादा बीच में बोलते हैं। सुनिए थोड़ा सा, जी सुन लीजिए थोड़ा सा, सुनने की भी आदत रखिए। जी
एजेंडा में चलिए। ये आपका बैंक वाला जो इशू है, आप अदर देन जब एजेंडा खत्म हो जाएगा तब आप लाइए ना। अब आप इस तरीके से आर्गुमेंट करेंगे कि उनको पहले मेंबर बनाएंगे, फिर उनके मसले देखेंगे, ये करेंगे। आपका एक कोई बैंक का सब्जेक्ट होगा, मानते हैं, लेकिन आप एजेंडा पे चलने दीजिए। आप हर बार आप ही बीच में बोलेंगे तो बाकी 30 लोग क्या करेंगे? बोटिया खेलेंगे यहाँ पर बैठ के। ये नहीं चलेगा। डोंट बी एग्रेसिव, डोंट बी एग्रेसिव प्लीज। ठीक है सर। देखिए, नहीं पता लगता। हाँ जी, देखिए, पहली बात, हम ग्रीवेंस उसका लेते हैं इंडिविजुअल का जो हमारा मेंबर है। अरे कुछ बैंकर्स के अगर प्रॉब्लम्स हैं तो या तो उनकी एसोसिएशन। की लोड़ी पागल माँ ये भी कौन सा बोल रहे हैं? एक बात तो ये समझ लीजिए खरे जी कि ये बीपीएस का प्लेटफॉर्म कोई यूनियन का प्लेटफॉर्म नहीं है। यूनियन चलाना अलग चीज होती है और पेंशनर्स की एसोसिएशन चलाना अलग चीज होती है। अब हम बाध्य हैं उसका ग्रीवेंस लेने के लिए जो हमारा मेंबर है या जो हमारा एफिलिएट है। पहले उनको हमारा मेंबर बनने दीजिए। प्यारी पक्की कर रही भई है। नंदा जी, आप म्यूट करिए अपना माइक प्लीज। नंदा जी, म्यूट करिए अपना माइक। चौहान साहब, आप भी कुछ बोलिए। इससे ज्यादा बात करोगे ये तो पीपी गुप्ता से या यहाँ कौन है वो कुशवाहा से, इसमें वो कैसे कर सकता है, कैसे गुप्ता से जरा बात कर लो, फिर मैं बता दूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। 500 रुपये पर डेलीगेट सेम है विच स्पाउच। गुड गुड। चलिए, मेरा आज का एजेंडा मेरा खत्म हो गया। आप बोलिए। एनी अदर इशू कैन बी रेज्ड विद द परमिशन ऑफ द चेयर। मिस्टर चौहान इज अवेलेबल। उनकी परमिशन से आपको कोई अगर इशू उठाना है तो उठाइए प्लीज। हेलो हाँ बोलिए। कैन आई स्पीक? मैं गुप्ता बोल रहा हूँ मैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। ऐसा है, what I have noticed today is that most of our members, managing committee members, they are not fully aware of the rules and regulations or the constitution of the BPS. Kindly recirculate it again. Let them read it. It will define the charter of duties of each office bearer, as well as what we are doing or what we are supposed to do and what we have done. करेगा? हाँ, इनको दोबारा सर्कुलेट करवा दीजिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो हर साल हम सर्कुलेट करते हैं और फिर कर देंगे। नहीं पढ़े नहीं। I don't want to name anybody. ऐसा है, जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि पहले वो समझ लें कि बीपीएस क्या है। हाँ, क्या है, बस that is more essential. हाँ, that is essential. We are basically a non-political, secular organization without any distinction of caste and creed or sex. ये हमारी ओपनिंग सेंटेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। We cannot change the fundamentals of our rules and regulations, which only the AGM is authorized to do so. So kindly highlight these things to them. दूसरा एक और चीज मैं क्लेरिफाई कर दूं कि हमारे यहाँ कोई यूनियन कंट्रीब्यूशन नहीं है। एवरीबडी इज वेलकम विद अस। हम किसी एक के साथ नहीं बंधे हुए। और ये प्लेटफॉर्म ये बड़े अच्छे से समझ लें जो अभी हमारे नए लोग साथ में आए हैं कि दिस इज नॉट ए यूनियन प्लेटफॉर्म। पेंशनर एसोसिएशन चलाना एक अलग चीज होती है, ट्रेड यूनियन चलाना बहुत अलग चीज होती है।
सर्विस लाइफ में हम सब लोग तकरीबन किसी ना किसी ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिविजुअल ओपिनियन, इंडिविजुअल एफिलिएशन अलग चीज है। वो कभी भी हमारे बीपीएस के वर्किंग में ना ही आई है पिछले 68 साल में। हर एग्जाम्पल मैं बता दूं, हमारे श्याम सुंदर जी 18 साल हमारे यहाँ प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहे। वो सीपीआईएम के पोर्टफोलियो के मेंबर थे, लेकिन कभी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया किसी को भी भारत पेंशनर समाज में कि वो सीपीआई के आदमी हैं। तो हमारे यहाँ हर यूनियन के, हर थिंकिंग के लोग हैं, हर आइडियोलॉजी के। उनकी थिंकिंग, उनकी आइडियोलॉजी एक पर्सनल मैटर है। वो भारत पेंशनर समाज के वर्किंग में ना हमने आने दिया है, ना हम आगे आने देंगे। Mr. Maheshwari, Mr. Maheshwari, मैं 1 मिनट कुछ कहना Mr. चाहता हूँ। Maheshwari, I want to speak. Yes. Mr. Maheshwari, Yes. I support the suggestion as regards the constitution put by our Honorable Mr. Kapoor. You please circulate the constitution of BPS. At Yes. least centrally you sent us, we will circulate it to our branch. Okay. We are publishing every year in the magazine, and I will send you to all our members in WhatsApp. Okay. So सर जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। बोलिए आप बोलिए। हाँ सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे विद ड्यू रेस्पेक्ट कि यूनियन की वर्किंग और बीपीएस की वर्किंग में क्या डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं? बीपीएस एक मिनट आप मैं समझ गया। आप मेरी बात तो सुनिए, मेरा क्वेश्चन तो खत्म होने दीजिए। हमारी बात तो सुन लीजिए, तब क्वेश्चन खत्म हो जाए तब सुनाइए। बी ब्रीफ प्लीज। जहां तक सवाल, कोई भी संगठन चाहे वो बीपीएस हो चाहे यूनियन हो, वो अपने पेंशनर्स का या वो यूनियन वाले अपने कर्मचारियों का प्रॉब्लम के लिए लड़ाई करते हैं। तो वही काम हमारी बीपीएस भी करती है, वही यूनियन करती है। और जहां तक सवाल राजनीति से, न यूनियन जुड़ी हुई है किसी राजनीतिक पार्टी से और ना हम लोग जुड़े हुए हैं बीपीएस में। तो काम तो वही करना है कि हमारी कठिनाइयों को, पेंशनर की कठिनाइयों को हमें दूर करना है, वही काम करना है। उसमें राजनीति कहीं नहीं आ जाती। जी सर बोलिए आप। हाँ बोलिए हमने। हाँ सुनिए, पेंशनर्स एसोसिएशन का वर्किंग एंटायरली डिफरेंट है। हमारे प्रोरेगेटिव डिफरेंट हैं, हमारे प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हैं जिसके थ्रू हम करते हैं। हम डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के अंदर आते हैं और उनके गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। हम यहाँ, जैसा मैंने पहले भी बताया, हम जो प्रॉब्लम उठाते हैं उसका जस्टिफिकेशन भी देते हैं और साथ में उनको ये भी बता देते हैं कि ये कैसे, इसके लिए फंड्स कहाँ आएंगे, कैसे इसके लिए फाइनेंशियल होगा। ये ऐसा बिना सोचे समझे हम कोई भी इशू नहीं उठाते हैं। अगर वो फुली जस्टिफाइड है, इम्प्लीमेंटेबल है, तभी हम वो इशू को लेते हैं। और ट्रेड यूनियन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सारे ट्रेड यूनियंस को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और किसी के साथ हमारे यहाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप न्यूट्रल रह के हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आप हमारे साथ रहते हुए कोई ट्रेड यूनियन को हमारे बीच में लाना चाहते हैं तो भाई साहब माफी चाहूंगा। मैं कहाँ ट्रेड यूनियन को ला रहा हूँ? नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ सबके लिए, सब लोगों के लिए। और जो, क्योंकि आप लोग अभी हाल में जुड़े हैं, आप बाकी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हर थिंकिंग का आदमी, हर आइडियोलॉजी का आदमी है, लेकिन उसको हम बीच में नहीं आने देते। हमारा प्लेटफॉर्म अलग है, हमारे सिस्टम्स अलग हैं। हम जो भी हमारी सुविधा है ग्रीवेंस रिलेशन की, वो मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन के थ्रू है। वी आर नॉट ए ट्रेड यूनियन, और हम उन्हीं के माध्यम से, हम रिकॉग्निशन भी हमारी उन्हीं से है
और हमने इश्यूज हम उन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। इज दैट क्लियर? कोई और किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हेलो इसलिए साहब कुछ कहना चाहेंगे? हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं भी कुछ गुप्ता बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं ऑल इंडिया केवीआईसी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन बम्बई की तरफ से बोल रहा हूँ। इनफैक्ट दिस इज माय फर्स्ट मीटिंग, सो आई मे बी एक्सक्यूज्ड इफ आई बाईपास एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पेंशनर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल अटेंडेंस रेगुलेशंस है, जो कि अपना केवीआईसी का अपना एम्प्लॉयज मेडिकल अटेंडेंस रेगुलेशंस है। उसके तहत हम लोग चाहते हैं कि हमारे पेंशनर्स को भी उसी एट पार सुविधा दी जाए, और उसके लिए हमारे केवीआई कमीशन ने, जो स्टैट्यूटरी कमीशन है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने रिजोल्यूशन पास करके मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को लिखा हुआ है। अभी एमएसएमई तक भी हम लोगों ने 2 साल से वो पेंडिंग था, परसू करते करते अभी उसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेजा गया है। नाउ अब हम उसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से परसू करें या मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन से परसू करें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्लियर कट बता दिया है कि सीजीएचएस में जिसके एम्प्लॉयज को बेनिफिट नहीं है, उसके पेंशनर्स को बेनिफिट नहीं दी जा सकती है नए तरीके से। तो हम थोड़ा सा गाइडेंस चाहेंगे इसमें। इशू नंबर 1 है ये हमारा। इशू नंबर 2, लखनऊ में जो हमारा एजीएम होने जा रहा है, हमारी एक लखनऊ यूनिट है उत्तर प्रदेश की, यदि आप उसका किसी भी तरीके से सहयोग चाहेंगे तो हम लोग उनको बताएंगे, और वो हमारी एफिलिएटेड यूनिट है, और उनसे हम आपको जो बन पड़ेगा, जो सहयोग बन पड़ेगा, वो देने के लिए तैयार है। ये 2 बातें हैं मेरी। थैंक यू वेरी मच गुप्ता जी। आप कृपया आपके लखनऊ में जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनके आप फोन नंबर वगैरह दे दीजिए खरे जी के पास, और हाँ, या दे आप देंगे, हमारे पास बिल्कुल। भेज दीजिए तो हम हाँ, दोनों जन को भेज देंगे। हाँ, आप जाओ। आपकी समस्या का जो सवाल है, देखिए हमारा हमेशा से इशू ये रहा है कि मेडिकल सुविधा जो है वो सभी पेंशनर्स को एक समान होना चाहिए, और हाँ। ये इशू हमारे जो रेज किया था पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी ये लिया, और उनकी 110 और 113 की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और डायरेक्शन उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है कि मेडिकल फैसिलिटीज इन ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स शुड बी एट पार फॉर एवरीबडी। ये रिकमेंडेशन आया हुआ है, और हम हर पे कमीशन में भी इसको लेते रहे हैं, वैसे भी लेते रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज जहाँ तक सवाल है वो सबको एट पार होना चाहिए। ऐसे ईपीएस 95 70 लाख लोग हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट के बाद उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती। 2009 से हम उनके लिए लड़ रहे हैं। लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर वो आते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एक प्रॉमिस कर चुकी है कि वो उनके लिए मेडिकल स्कीम ला रहे हैं, लेकिन आज तक आई नहीं है। एक और हमारा मेडिकल में इश्यू है कि मिसिंग मिडिल इंडियंस जो अभी आपके मैगजीन में भी आया है। मिसिंग मिडिल का मतलब हमारा ये है कि बहुत सारे लोग जो अपर स्टेटा के हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, जो कि लोअर स्टेटा के लोग हैं उनके लिए आप आयुष्मान भारत ले आए। मिडिल लेवल में अब 2 सेक्शंस हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट रिटायरीज का है, जिनको लिए कोई ना कोई मेडिकल स्कीम अवेलेबल है, लेकिन हरचंदन जी माइक आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो एक बड़ा सेक्शन ऐसा रह जाता है
जिसको जो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से कवर नहीं होता या उसने किसी वजह से कोई गवर्नमेंट स्कीम को ऑप्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ हरियाणा में एक मेवात डिस्ट्रिक्ट है नू, उसके 60 किलोमीटर के दायरे में कुछ भी नहीं है, कोई 45 किलोमीटर के दायरे में ना CGHS है, ना RLHS है, ना EHS है। तो वहाँ जो बंदा रहता है वो क्यों मेडिकल स्कीम कोई भी ज्वाइन करेगा? तो ऐसे जो लोग हैं जो किसी भी स्कीम से या तो कवर नहीं होते या किसी वजह से उन्होंने वो गवर्नमेंट की स्कीम नहीं ली है, उनके लिए हम इंश्योरेंस के लिए शुरू से लड़ते रहे। गोवा में भी ये आइटम हमने रेज किया, वहाँ भी एक्सेप्ट हुआ। एक बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डॉक्यूमेंट बना के DOE को भेजा भी हुआ है, अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। हमारा कहना यह है कि जो प्रीमियम हो उसका 75% गवर्नमेंट दे, 35% वो देगा इन केस ऑफ पेंशनर्स जो किसी भी स्कीम के अंदर नहीं आते, जैसे EPS 95 या और कई सेक्शंस ऐसे हैं अभी आप जैसे बता रहे हैं। तो वो हमारा एक परमानेंट इशू है, बरसों से हम उठा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इश्यू नहीं होते, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे। रेलवे के कई इश्यूज हमने कराए हैं जो 8-8, 10-10 साल के बाद हो पाए। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमारे से जो बनेगा वो हम करेंगे और करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। सर हमको ही बोलने का मौका दिया जाए। हाँ जी बोलिएगा। हाँ हाँ आप भी बोलिए। हाँ सभी को नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हम सभी बातों में चर्चा हो गया, एनी अदर आइटम है, इसलिए मैं कल 2 मिनट का समय दूंगा। सर सर्वप्रथम ये मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि जैसे अभी चर्चा हुई हो, आपने उस पर एग्री भी किया है कि जो भी भारत पेंशन समाज से जो एसोसिएशन एफिलिएट हो, तो कम से कम उसको जो इधर साल भर में हुए हों, 2 साल में हुए हों, उनको ये बताने का काम किया जाए कि भारत पेंशन समाज का उद्देश्य क्या है और भारत समाज और उसके एसोसिएशन को मतलब किस तरीके से मतलब काम करना है। क्योंकि सर अभी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा गया कि उसमें कुछ लोगों ने 8वें पेंशन आयोग के गठन के सवाल पर ही खड़ा कर दिया और उसके जो लोग हैं उस पर कोई उसको रोकने का भी काम नहीं किया। हमारे सेक्रेटरी जनरल आदरणीय श्री महेश्वरी जी ने यहाँ तक लिखा कि प्लीज अपडेट योरसेल्फ लिखा, लेकिन इतना इस बात को मैंने कष्ट हुआ कि इसका भी हमारे जनरल सेक्रेटरी के भी जो लिखा प्लीज अपडेट और उस पे उसका भी काउंटर कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा ये जो डिसिप्लिन थोड़ा सा इससे अच्छा नहीं जाता है और कोई भी संगठन बिना डिसिप्लिन के नहीं आगे बढ़ सकता है। तो हमारा ये मतलब हो सकता तो कम से कम जो लोग एसोसिएशन के जो लोग होंगे उसको तो अपने लोगों को तो समझाना बताना चाहिए कि इसका क्या उद्देश्य है, तो उसमें क्या यूनियन जो अभी आपने बता भी दिया कि यूनियन क्या है, एसोसिएशन क्या है, तो इस तरीके से सब लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में गाइड लाइन करना चाहिए। यही हमारा आपसे कहने का उद्देश्य है कि ऐसी स्थिति ना आवे कि मतलब हमारे सेक्रेटरी जनरल भी अगर कोई कमेंट चाहे तो उस पर भी कोई कमेंट आ जाए, तो ये अच्छी चीज नहीं होती है सर। यही बात में धन्यवाद। हेलो हाँ जी, कोई और कमेंट, कोई और सजेशन, कोई और सुझाव, कोई और ऐतराज? Let's call it a day. मुनीलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों का जो आज जुड़े हैं, मैं खास तौर से सूर्य प्रकाश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमेशा हमारी VC को मैनेज करते हैं। ना सिर्फ VC बल्कि हर महीने बेंगलोर में बैठे हुए हमारी मैगजीन को एडिट करते हैं, प्रूफ रीडिंग मैगजीन का करते हैं और वो ऑनलाइन ही करेक्शन सबको करके भेजते हैं जो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स से कि उनके उदाहरण से लीजिए। आज डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, आप गुवाहाटी में बैठे हैं या नागपुर में बैठे हैं या विशाखापट्टनम में बैठे हैं, आप अगर भारत पेंशनर समाज के काम में सहयोग करना चाहें
तो कहीं से भी कर सकते हैं। ऐसा है, एक बड़ा इशू है कि हम इश्यूज उठाते हैं, चिट्ठियां भी लिखते हैं, लेकिन उनको हम परसू नहीं कर पाते। अब हर चीज तो हेडक्वार्टर से नहीं हो पाती है। ये या तो जो कंसर्न एफिलिएट्स हैं हमारे, वो उस इश्यू को परसू करें, या हमारे साथ जो जैसे हमारे यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी अभी खाली हैं, एएसडी हैं, और कई में ऑफिस बेयरर्स हैं इम्पोर्टेंट, ये उनको हमारा सहयोग करना पड़ेगा कि जो हम इशू उठाते हैं वो हर मैगजीन में छपता है, व्हाट्सएप पे आता है, ब्लॉग पे आता है, वो अगर विद इन 1 मंथ उसके ऊपर हमें कोई जवाब नहीं आता, रिएक्शन नहीं आता, तो कम से कम एक आरटीआई कोई किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन हैं या हमारे सेक्रेटरीज हैं, तो वो आरटीआई के माध्यम से भी उसको चेंज किया जा सकता है। दूसरा हमारा निवेदन ये है, हमेशा से रहा है कि हमें नई चीज़ें अडॉप्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आए और इंटरनेट का इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप और ईमेल वगैरह का इस्तेमाल करें, उसके साथ हमारे सबके साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, विशेषकर सूर्य प्रकाश जी का, कपूर साहब का, जो अपनी बीमारी के बावजूद हमारे साथ पार्टिसिपेट किए और अपने विचार उन्होंने रख दिए हमें। हेलो और वाइकुल सिंह जी दिख रहे हैं मेरे को मणिपुर से। थैंक यू हाँ, वो मणिपुर में बैठे, वो वहाँ आजू बाजू का सारा नॉर्थ ईस्ट का देखते हैं और हर प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं, करते रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत विशेष धन्यवाद है। और हमारे खरे जी का तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद है कि वो उन्होंने जिम्मेवारी ली है हमारी 68 एजीएम की, और अब एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे इश्यूज में, अपने खटके फ्रैंकली अपने विचार रखते हैं। और मुनीलाल शर्मा जी गुप्ता जी से भी मेरा बड़ी अच्छी उनकी एसोसिएशन चल रही है, और काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी वो एनी रेलवे में काफ़ी उनका बढ़ रहा है वर्चस्व। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से रायलू जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, रायलू जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और उनसे निवेदन करूँगा कि हर साल की तरह वो उसी तरीके से सहयोग करते रहें और उसी तरीके से काम करते रहें। चौहान साहब कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, can I speak only one word? हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ आपका। Namaste, namaste to everybody. I am very thankful to our General Secretary General, Sri Maheshwari Saab, for creating the committees, South and North Zone wise, for demanding 8th CPC. And I am very thankful for including my name also in that. And we are going to pass resolutions in every branch and associations affiliated to us, and also create a momentum from railway wise. And I am speaking to our affiliates in North also, North and South also. So I am not limiting for South Zone only for railways, because we got affiliates in this North also. All the railway associations, pensioners associations affiliated to us, and with NFIR, we are going to take care of this matter very seriously for creating a momentum for demanding a 8th CPC. And I am very much thankful to Sri Maheshwarji for that. And I also already created a WhatsApp group for our South Zone, including the committee members, and we are sharing our ideas how to proceed and how to generate and how to be in touch with all the pensioners associations in the zone. Thank you very much, sir. देखिए, एज पे कमीशन के बारे में मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर कॉर्नर से
डिमांड उठने लगी है। बेंगलोर से भी कन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन ने डिमांड उठाई है, CCPA ने भी डिमांड उठाई है। हर चारों तरफ से अब ये डिमांड उठ चली है और हमें ये सबसे अच्छा टाइम स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए है कि जब जनरल इलेक्शन नज़दीक है और हमारा पे कमीशन का फॉर्मेशन नज़दीक है। कुछ लोगों को, हमारे मेंबर्स जो हैं हमारे से जुड़े हैं, उनको एक गलतफहमी ये रही कि 7th पे कमीशन ने कहा कि आगे पे कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है, और कुछ लोगों ने कोट किया कि जेटली जी ने ये कहा था, ये भी उन्होंने भी कहा था। सवाल ये है, अगस्त 2022 में पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये इशू 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन को कंसीडर करते समय ये इशू उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। इसलिए 2010 अक्टूबर 2022 से ये डिमांड उठ रही है और बढ़ते चली जा रही है कि 24 में से पहले ये पे कमीशन का फॉर्मेशन होना चाहिए। इसके लिए अभी हमें इस पे डिमांड को आगे बढ़ाना है चारों तरफ से। ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान से उठने लगी है और हम साथ ही साथ भारत पेंशनर समाज ने उनको ये भी बताने की कोशिश की है कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आप कैसे नलीफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबडी। महेश्वरी जी हाँ जी नमस्ते चौधरी यार। हाँ चौधरी regarding साहब yes this is good for yet CPC we are talking about. जी Hello sir, actually one more this hello हाँ जी so here actually there is one more demand is coming regarding this medical issue we are discussing na. So what is happening now, you know, this CGHS in the large cities, okay, and in fact standing committee also has recommended that pensioners demand should be accepted to explore the possibility at the district level. And चौधरी there साहब, also what is happening चौधरी still साहब, ये स्टैंडिंग कमेटीज को, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज को ये डिमांड हमने ही दी थी। और अभी उसके बाद उन्होंने एक पिटीशन कमेटी भी बनाई CGHS के ऊपर, उसका भी एविडेंस हम लोग देख चुके हैं। there is no there you know there the I want to add something. हाँ जी बोलिए। Actually what is happening, even now say Aurangabad, this wellness center was sanctioned in I think actually it is April 2021. It could be opened only in April 2023. Secondly, there are so many issues with this CGHS wellness center. Medical officers, there is a shortage of medical officers. Government is not allowing the posting and the sanctioning of the post and all. There are a lot of issues. There are issues with the wellness center also. So one more demand is coming from the rural area that actually instead of opening the wellness center, they should authorize the empaneled hospitals at the district places, and they will cover into the CGHS, but they will not open the CGHS wellness center. There is somewhat new thing is coming up. अभी चौधरी साहब, आपने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 145 रिपोर्ट आपने अगर देखी हो, तो वहाँ पे भी उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है जो हमने रेज किया था कि 30% वैकेंसीज हैं CGHS में, जो कि वैकेंट पड़ी हैं, और दूसरा ड्रग्स की भी शॉर्ट सप्लाई है। ये रिकमेंडेशन अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने दिया है कि जल्दी से जल्दी ये वैकेंसीज भरी जाए और ये ड्रग की जो सप्लाई है उसको भी इम्प्रूव किया जाए तुरंत। आप देखिए सर, लेकिन उससे ना ये सजेशन बहुत अच्छा है कि एक्चुअली दे नीड टू ओपन वेलनेस सेंटर। अब सुनिए, तो
जो पिटिशन कमेटी एक CGHS के ऊपर पार्लियामेंट्री पिटिशन कमेटी आई थी, उसको जो हमने एविडेंस दिया, एक्चुअली ये डिमांड 2017 में हमने उठाई थी हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। 2017 के बाद 2022 में वो सुनवाई उसकी हुई। हाँ, और हमने भी लिखा था वहाँ उनको। हाँ देखिए, वहाँ 2-3 बड़े इश्यू थे CGHS के। एक तो रेट रिवीजन। देखिए CGHS के रेट सभी गवर्नमेंट स्कीम्स लागू होते हैं, अगर वहाँ कोई कमी है तो उसका रिफ्लेक्शन ECHS RELHS में भी आता है। तो हमारा सजेशन ये था कि एम्स के लेवल पे रेट ले आना चाहिए। वहाँ जो डायरेक्टर मीटिंग चल रही है DG CGHS का कहना ये था कि हॉस्पिटल जो टेंडर भरते हैं हम तो उसी के हिसाब से रेट दे सकते हैं, उससे तो ज्यादा नहीं दे सकते ना जो हॉस्पिटल ने टेंडर में दिया। हमारा कहना ये था कि भाई टेंडर इनवाइट करने की जरूरत क्या है, आप एम्स के रेट लागू कर दो ना, वहाँ कोई पूछेगा नहीं आपको। खाली एम्स के रेट्स को वो आप CGHS एम्स के रेट्स को अडॉप्ट कर ले, और वो बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनमें भी एम्स का रेट अडॉप्ट हो जाए। और MOU में आप एक क्लॉज ले आइए। एक बड़ा इशू था कि हॉस्पिटल्स एंटरटेन नहीं करते, तो वहाँ हमारा सजेशन ये था कि बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां आपने सब्सिडाइज रेट पे 1 रुपये गज में जमीन उनको दी है, उनके MOU को आप अमेंड करिए, उसमें एक क्लॉज ऐड करिए कि ऐसे सभी हॉस्पिटल को बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट पैनल की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके पैनल पे आना पड़ेगा, और अगर कोई उसमें डिफॉल्ट करता है या प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है तो उस केस में प्रोविजन होना चाहिए उसके लाइसेंस सस्पेंशन का। आज जो प्रोविजन है ये है कि उसका डी-एम्पैनलमेंट हो जाता है, उससे कोई बात नहीं बनती, उसकी परवाह नहीं करते हॉस्पिटल्स। अगर ये प्रोविजन आ जाए कि उसको जो है उसका लाइसेंस पर्टिकुलर टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएगा, तो उससे ये अफेक्ट हो सकता है। पार्लियामेंट्री कमेटी उसके लिए रेग्रीएबल थी। अब उन्होंने जो भी दिया, अभी उन्होंने अपनी रिपोर्ट ओपन नहीं की है, लेकिन जो रेट अभी रिवाइज हुए हैं CGHS के अपवर्ड वो उसी के रेफरेंस में हुए हैं, लेकिन वो रेट्स रिवीजन से हम एग्री नहीं करते। ये भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि CGHS के रेट्स जो है वो मार्केट रिलेटेड होना चाहिए। ये अभी जो रिपोर्ट आई है स्टैंडिंग कमेटी की 145 उसमें ये है। सर नहीं सर, वो तो ठीक है, मेडिकल ये हॉस्पिटल का तो सर बिल्कुल ठीक हो रहा है अभी आपने जो बताया। अभी जो देखिए जो पेमेंट था हॉस्पिटल्स का वो भी फरवरी तक क्लियर हो चुका सबका, और आगे व्यवस्था ये है कि वो अपने बिल वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे और 2 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए चौधरी साहब आप एग्री करेंगे, आपकी एक बड़ी संस्था है, आपकी भी बहुत पुरानी है, शायद हमारे सही भी पुरानी है, तो एक को में तो सारे इश्यूज नहीं हो सकते, धीरे धीरे ही होते हैं। हम डिमांड लगाते हैं, फिर बरसों उसको परस्यू करते हैं, तब जाके वो हो पाते हैं। वो तो वो पता है सर। नहीं सर, ये जो डिमांड है ना ये थोड़ी सी अलग तरह की आ रही है। हाँ, इसका आप बना के भेजिए, इसको भी इसको हम लेंगे। ये अच्छा सजेशन। हम कहते हैं why CGHS सभी के लिए लागू होना चाहिए। नहीं लिख देता हूँ मैं, एक्चुअली आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द हम कहते हैं ये RELHS में भी लागू होना चाहिए, ECHS को भी लागू होना चाहिए, सबको लागू होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। नहीं और सर क्या है, नहीं इनका है ना झमेला है दिस रिगार्डिंग वेलनेस सेंटर, देयर आर सो मेनी इश्यूज विद वेलनेस सेंटर आल्सो। तो सीधा ही हॉस्पिटल दे दे, और वो पहला का एक रूल है ना कि wherever they will take the indoor facility from the hospital and they will get the medical allowance for outdoor facility। ये CGHS वेलनेस सेंटर वगैरह नहीं चाहिए। देखिए अभी आप डिमांड बना के भेजिए, भेज रहा हूँ। हाँ, अलॉन्ग विद जस्टिफिकेशन, तो परस्यू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सूर्य प्रकाश जी धन्यवाद बहुत बहुत। लेट अस नाउ एंड द मीटिंग with thanks to the chair and for
Thanks to everybody who has joined, participated with us. Thank you, very sir. much. Thank you. Hello. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir ji. Thank you all. Thank you, everybody. Thank you, everybody.